Good morning, students. Welcome to the next lecture of periodic classification of elements. In the previous lecture, we discussed about Mendeleev's periodic table. In that lecture, we discussed that Mendeleev completed its periodic table with 63 elements, plus he used atomic mass as a periodic property to arrange the element, plus he used chemical properties like oxide formula and hydride formula to arrange them according to their chemical properties. Okay, there was some achievements for Mendeleev's. Also, there was some limitations. But today we are going to study our errorless periodic table that has been given to you in your textbook in table number 5.6. Table number 5.6. So before you see today's lecture, please open the table number 5.6 from your textbook and refer whatever I am saying from your textbook. इस लेक्चर को सुनने से पहले आपको टेक्स्ट बुक में टेबल नंबर 5.6 ओपन करना है और पूरे लेक्चर के दौरान जो कोई भी चीज़ मैं यहाँ से बताता हूँ वो चीज़ें आपको टेबल 5.6 से रिलेट करते जाना है ताकि आपको कोई डाउट ना रहे. ओके, सो लेट्स बिगिन. इन अर्ली 19th century, Moseley, Henry Moseley come to know that atomic mass is not that much useful because atomic number is more periodic than atomic mass. Henry Moseley come to know that in 1937 that atomic number is more periodic, it is more precise than atomic mass. Okay, when Mendeleev gave us its table, there was not have been discovered proton, they have not discovered proton, electron and neutron. But when Henry Moseley gives that particular statement, atomic number was defined. What is atomic number? Let's recall it from 9th. Atomic number means number of protons in any element. Number of protons in any element is referred as atomic number. Z is the symbol of atomic number. We know that. So we are going to modify Mendeleev's periodic table into our modern periodic table. Some of the portion of modern periodic table I have written on the board. We are going to discuss this periodic table in today's lecture. Atomic number means number of proton. Okay, let's start. First of all, this modern periodic table was contribution of many scientists, and after that we are getting this. In this modern periodic table, total 118 elements are there. Total 118 elements are there from hydrogen to oganesson. Total 118 elements are discovered. Now, the vertical columns 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 and 18. Vertical columns are known as groups. Remember that
total 18 vertical columns are there. In the sense, total 18 groups are present in your periodic table. Group number 1 to group number 18, total 18 columns are there, and these columns are known as groups. Now rows, total 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7 rows are there. 7 rows are there and they are known as periods. So 7 periods are there and 18 groups are available in your periodic table. Now let's talk about something which has not been given in your textbook. Group number 1 and 2. Group number 1 and 2. So 1 and 2 is known as S block elements. Group number 3 to 12. Group number 3 to 12 is known as a D block element. There are blocks. Group number 13 to 18 is known as a P block element. And element 56 to 71 and element 90 to 103 here. You will find it besides the barium and radium. It is known as lanthanoids and actinoids. They are called F block elements. ओके, आपके टेबल में यहाँ पे 2 लाइन दी है, देखना आप यहाँ पे, आपको यहाँ पे गैप दिखेगा 57 से डायरेक्ट 72 है, तो बीच के जो 58 टू 71 है वो नीचे आपको एक लाइन में दिए है जो कि F ब्लॉक एलिमेंट है. ओके, व्हाई दे आर ब्लॉक्स? बिकॉज ऑफ देयर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन. उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन अलग अलग है, उसकी वजह से उनको अलग अलग ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया है. क्यों? अब आपको ऑर्बिट के बारे में तो पता ही है. व्हाट इज ऑर्बिट? ऑर्बिट मीन्स a particular path where electron revolve around the nucleus is known as a orbit. लेकिन उसके आगे भी कुछ होता है, that is called orbitals. You will study in your 11th and 12th. What is orbitals? There are 4 type of orbitals: s orbital, p orbital, d orbital and f orbital. जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में आएगा वो s ब्लॉक के एलिमेंट कहे जाएंगे. जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन p ब्लॉक में आएगा वो p ब्लॉक के एलिमेंट कहे जाएंगे. जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन d ब्लॉक में आएगा वो d ब्लॉक के एलिमेंट कहे जाएंगे. और जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन f ब्लॉक में आएगा वो f ब्लॉक एलिमेंट्स कहे जाएंगे. इज दैट क्लियर? नाउ टोटल 18 ग्रुप्स आर देयर and total 7 rows are there. Okay, let's talk about Mendeleev. What was the chemical properties he used? Okay, he used oxides formula and hydride formula to arrange them. Okay, but we do not have used any of these. Why? Because atomic number is more periodic than atomic mass. Okay, what is the periodic law over here? What is the periodic law? If elements are arranged according to their atomic number, we will get this periodic table. So periodicity will be the atomic number. Okay, when we move from one element to the other, hydrogen, okay, first row में second कौन सा है? Helium. Hydrogen to helium डिफरेंस कितने एटॉमिक नंबर का है? प्रिसाइजली 1 एटॉमिक नंबर का दोनों के बीच में डिफरेंस है. हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1, हीलियम एटॉमिक नंबर 2, लिथियम एटॉमिक नंबर 3. सो अकॉर्डेंस विल बी देयर. ओके, उसके बाद जो ग्रीन पेन से लिखे हुए, यहाँ पे सारे ग्रीन पेन से ही आएंगे. जितने ग्रीन पेन से लिखे हुए हैं वो सारे मेटल है. द ब्लैक पेन बिलोंग्स टू
non-metal, and the red part are metalloids, semi-metals, means they are containing some of the property of metal and some of the properties of non-metal. Okay, now why first group elements are lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium and francium? ये सारे फर्स्ट ब्लॉक फर्स्ट ग्रुप के अंदर क्यों है? चलो बात करते हैं उसके बारे में। लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3, लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगा 2 1। फिर सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, तो उसका होगा 2 8 1। फिर पोटेशियम का है 19, सॉरी यस 19, सो उसका होगा 2 8 8 1। लाइकवाइज उसके बाद है रुबिडियम, सो रुबिडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2 8 8 18 1। उसके बाद है सीजियम, तो सीजियम का कॉन्फ़िगरेशन होगा 2 8 8 18 18 1। लुक एट द सिमिलैरिटी in this group, the last orbit or last cell has 1 electron in it. How many valence electron are there? 1 valence electron is present in its last orbit. That's why the chemical properties of lithium, sodium, potassium, rubidium and cesium are similar, and that's why they are in the one group. On the basis of electronic configuration, elements have been arranged to their position. Okay, clear? Now let's talk about group number 17. Group number 17 here. So fluorine has atomic number 9. That's why 2 7 will be the electronic configuration. Chlorine on the other end 17, that's why 2 8 7. After that bromine will be 2 8 8 17. After then iodine will be 2 8 8 18 and 17. What is the similarity? Every single element is missing 1 electron in its last orbit. अगर इसको अपना लास्ट ऑर्बिट कंप्लीट करना है 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, अगर इसको अपना लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट कंप्लीट करना है 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको लास्ट ऑर्बिट कंप्लीट करना है 18 के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको करना है 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। मीन्स their electronic configuration have 1 electron missing from its last orbit. That's why they are in group number 17. Group number 18, every single element have completed their own last orbital. That's why they are in group number 18. Likewise यहाँ पे जितने ग्रुप है अकॉर्डिंगली उनके सारे एलिमेंट्स अपने अपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक जैसे रखते हैं। अगर मैं सेकंड ग्रुप की बात करूं तो उनके ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे लास्ट ऑर्बिट में। फिर मैं 13 ग्रुप की बात करूं तो पहले 2 के 3, बाद वाले जैसे ब्रोमीन के 17 हो गए थे, क्योंकि डी भी आ जाएगा ना वहाँ पे, तो 10 इलेक्ट्रॉन ये ऐड होंगे। देखो यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन का जंप क्यों है 7 से 17? वाई देर इज अ जंप इन इलेक्ट्रॉन्स? बिकॉज 10 इलेक्ट्रॉन्स इन द सेंस 10 डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ डी ब्लॉक हैज बीन एडेड फ्रॉम ब्रोमीन। ओके, सो वो चीज़ आयोडीन में भी होगी, एस्टेटिन में भी होगी और टेनेसिस में भी देखने को मिलेगी। इज दैट क्लियर? Okay, now let's discuss about how many electrons are there in the period.
there is a formula 2n square. We have to follow this formula 2n square. ओके, सो के सबसे पहले सेल की मैं बात करूं पीरियड नंबर 1, तो उसके लिए 2 इंटू 1 स्क्वायर, इन द सेंस पहले के अंदर 2 एलिमेंट 1 and 2 हाइड्रोजन एंड हीलियम। फिर दूसरे की बात करें 2 इंटू 2 स्क्वायर n इक्वल टू 2, दैट्स वाई 4 इंटू 2 8 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर। सिमिलरली हम बात करें तो पहले के अंदर 2, फिर 8, फिर 8, फिर 18, फिर 18 एंड फिर 32 एंड फिर 32। दैट इज द इलेक्ट्रॉन फिलिंग ऑर्डर। वी डिस्कस्ड अबाउट दिस इन 9th। पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन। वैसे ही यहाँ पे है, पहले पीरियड में 2 एलिमेंट है, फिर दूसरे के अंदर 8 एलिमेंट है, 2 यहाँ पे और 6 यहाँ पे। फिर तीसरे के अंदर भी 2 है, 2 यहाँ पे और 6 यहाँ पे। फिर चौथे से 18, 18, फिर 32, यहाँ पे जो जंप है 14 का वो यहाँ पे है। फिर वैसे ही 7th में जो जंप है वो यहाँ पे है, एक्टिनोइड्स। क्लियर? सो दैट इज ऑल अबाउट आवर पीरियोडिक टेबल। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इट्स प्रॉपर्टीज। सो सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या थी? व्हाट वाज द फर्स्ट प्रॉपर्टी? ओके, लेट्स एलिमिनेट द लिमिटेशन ऑफ मेंडेलीव फर्स्ट। फर्स्ट लिमिटेशन वाज प्लेस ऑफ हाइड्रोजन। मेंडेलीव do not have precise space for hydrogen in its periodic table. Right now we have a separate place for hydrogen. You can see in your textbook there is a gap between these two. So hydrogen cannot be considered in the first group as well as hydrogen cannot be considered in the 17th group. It is separated from its own properties. Okay. Second thing, second limitation of Mendeleev, that was Mendeleev do not have space to put down the isotopes. Okay, let's talk about isotopes here. What is the definition of isotope? Same atomic number, different mass. अब यहाँ पे एटॉमिक नंबर तो सेम रहेंगे, तो हाइड्रोजन के जितने भी आइसोटोप है वो हाइड्रोजन की बॉक्स में ही रहेंगे। Why? Because we have changed the periodic law. Mendeleev follows atomic mass. That's why he have to put a different box for different mass. And atomic mass अलग अलग रहते हैं आइसोटोप के, तो उसके लिए बॉक्स अलग होना चाहिए इन Mendeleev टेबल। बट यहाँ पे अब हमने एटॉमिक नंबर को बना दिया है हमारा प्रायोरिटी। That's why all the isotope of hydrogen will be in the box of hydrogen. So that limitation was also eliminated. Okay, third limitation of Mendeleev, he cannot follow the order of atomic mass. और हमने तो यहाँ पे completely follow किया है हमारा order atomic number का। Every single element is placed down increasing one atomic number. Okay, clear? अब हमने ग्रुप्स की बात की थी, पीरियड की बात करते हैं। चलो, अगर हम सेकंड पीरियड की बात करें तो लिथियम का कॉन्फ़िगरेशन है 2-1। फिर उसके बाद पीरियड में आता है बेरिलियम, तो उसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2-2। फिर आता है बोरॉन, तो बोरॉन का कॉन्फ़िगरेशन होगा 2-3। फिर कार्बन 2-4, फिर नाइट्रोजन 2-5, फिर ऑक्सीजन 2-6, फिर फ्लोरीन 2-7 एंड फिर नियोन 2-8। वैसे उसके बाद की बात करो तो सोडियम का 2-8-1, फिर मैग्नीशियम का 2-8-2। देखो आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक 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 बढ़ते जा रहे हैं। फिर आता है एल्यूमिनियम, तो उसका हो जाएगा 2-8-3। फिर सिलिकॉन 2-8-4, फिर फॉस्फोरस
285, फिर सल्फर 286, फिर क्लोरीन 287 एंड फिर आर्गोन 288. You can see that there is a gradual increase in valence electron. Cell वही है, number of orbit do not change. Here 2 orbits are there, so 2 orbits are there. Here 3 orbits are there, so 3 orbits are there. Only valence electron increases in the period, whereas in the column a new shell has been added and same number of valence electron. So let's write the properties. In the period, same orbit or same shell, different valence electron, whereas in group में क्या होता है? सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन whereas different number of cells. There are no chemical similarities in periodic, but there are chemical similarities in group and physical similarities also. Okay, now let's talk about the valency. We discussed valency in the 9th. Now we are going to discuss valency over here in the periodic table. What is valency? Valency means its number of bond that compound or that element forms. Okay, now let's talk about sodium. Sodium have atomic number 11, so 281. How many valence electron are there? In the last orbit, 1 valence electron is available. That's why sodium has a valency of 1. He can lose 1 electron and can make 1 bond. Let's talk about aluminium. Aluminium will be 2 and 3. Sorry, 283. Aluminium will be 283. Then aluminium have valency of 3. Is that clear? Let's talk about magnesium. 282. Then valency will be 2. Oxygen 26. Okay, oxygen have 6 electron in its orbit. जब 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो गए, मैंने बोला था क्या करना है, 8 में से उसको माइनस करना है. ओके, 8 में से उसको माइनस करो, 8 - 6, तो इसका वैलेंसी हो जाएगा 2. फिर फ्लोरीन 27, 8 - 7 1. अब बात करते हैं, ये हमने 288 तक की बात की, ऑक्टेट तक. अब हम 18 वाले एलिमेंट की बात करते हैं. जैसे कि हमने यहां से लिया ब्रोमीन 288 17, सो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 17. तो हम यहां से 8 में से उसको माइनस करते थे ना इन सबको. अब हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हुए टोटल? 18. तो 18 में से माइनस करो, 18 - 17, यानी कि इसकी वैलेंसी हुई 1. ओके, सल्फर की बात करते हैं. 286, 8 में से 6 बात करो तो उसकी वैलेंसी हुई 2. सो दैट इज कॉल्ड वैलेंसी, नंबर ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन दैट एलिमेंट इज गोइंग टू फॉर्म. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एटॉमिक साइज. अब अच्छे से ध्यान देना, जो चीज मैं बताने वाला हूं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. एटॉमिक साइज. हमने बोला था कि जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हैं, एक नया शेल ऐड होता है. जैसे कि यहाँ पे एक शेल था, यहाँ पे 2 है, 3 4 5 6 और 7 शेल. तो अगर हम नया शेल ऐड करते हैं तो उसका साइज भी बड़ा होता जाएगा ना, क्योंकि हम ऑर्बिट ऐड करते जाते हैं, नई ऑर्बिट.
That's why when we add a new shell, the atomic size increases. So in the group, let's talk about the group. In the groups हम बात कर रहे हैं एटॉमिक साइज की, फ्रॉम अप टू डाउन, ग्रुप में ऊपर से नीचे की ओर, फ्रॉम अप टू डाउन एटॉमिक साइज increases. Why? Because we are adding new shell to it. एक नया ऑर्बिट ऐड करते जाते हैं. That's why atomic size increases. In period, in the sense left to right. In the period. Okay. हम यहां से आगे बढ़ते हैं, जैसे कि लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन. अगर हम इस तरफ आगे बढ़ते हैं तो सेल सेम रहता है, एक ही सेल में नए इलेक्ट्रॉन ऐड होते हैं. अब सोचो, अंदर प्रोटॉन ऐड होंगे, बाहर इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे, अट्रैक्शन बढ़ेगा तो साइज छोटा होगा ना. सो व्हेन वी गो लेफ्ट टू राइट, एटॉमिक साइज डिक्रीजेस. सो पीरियड में एटॉमिक साइज डिक्रीज होती है और ग्रुप में एटॉमिक साइज इंक्रीज होती है. आपको टेक्स्ट बुक में कुछ एक एक्टिविटीज दी है इसके बारे में, उसके अंदर आपको सारे साइज दिए हैं, कुछ एक एग्जाम्पल दिए हैं, उसको अरेंज करो हमारे रूल के हिसाब से तो आपको पूरा आंसर मिल जाएगा. आफ्टर द एटॉमिक साइज आवर नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज मेटालिक प्रॉपर्टी. चलो, हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मेटालिक. सो अगर ग्रुप्स की बात करें तो अप टू डाउन मेटालिक प्रॉपर्टी इंक्रीज होगी, और पीरियड्स की बात करें लेफ्ट टू राइट मेटालिक प्रॉपर्टी डिक्रीज होगी. क्यों? चलो बताओ, ऐसा क्यों होता है? बताओ चलो, वाई इट इज हैपनिंग ओवर हियर. यहां पे हम नया सेल ऐड करते हैं, इन द सेंस वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारे सेंटर से दूर होता जा रहा है. हमें जो इलेक्ट्रॉन का रिएक्शन करवाना है वो इलेक्ट्रॉन सेंटर से दूर होता जाएगा जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आएंगे. सो अट्रैक्शन कम होता जाएगा, एंड इफ अट्रैक्शन डिक्रीजेस दैट एलिमेंट कैन लूज इलेक्ट्रॉन इजीली. और अगर इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव होगा तो उसका मेटालिक प्रॉपर्टी इंक्रीज होगा. तो हम जैसे जैसे लिथियम से फ्रांसियम की तरफ जाएंगे मेटालिक प्रॉपर्टी इंक्रीज होगा. आपको उसका एग्जांपल बताता हूँ. देखो ये 14 ग्रुप, देखो ये नॉन मेटल है, फिर ये सेमी मेटल हो गए, फिर ये मेटल हो गए, तो ऊपर से नीचे तरफ मेटालिक की ओर आगे बढ़ते हो. देखो आप, इन द सेंस जैसे जैसे आप नीचे की ओर आओगे आपको मेटालिक प्रॉपर्टी ज्यादा देखने को मिलेगी. नाउ इन द पीरियड्स सेम सेल और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड करते जाते हैं, साइज कम होता जाता है तो इलेक्ट्रॉन रिमूव करना डिफिकल्ट हो जाएगा, वो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेंगे. तो उसकी वजह से जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो मेटालिक प्रॉपर्टी डिक्रीज होता है. अब नॉन मेटालिक इन द सेंस हम जैसे जैसे ऊपर से नीचे आएंगे इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स मिलेंगे. इलेक्ट्रोपॉजिटिव मीन्स जो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं ऐसे. और जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे हमें इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट्स मिलेंगे, यानी कि नॉन मेटल्स. ओके, अगर मैं नॉन मेटालिक कैरेक्टर की बात करूं तो अब अगर हम ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं तो वो डिक्रीज होता है, और लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होता है, इससे ऑपोजिट. ओके, इज दैट क्लियर? समझ में आया?
अब बात करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, यानी कि इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी। तो वो नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी की जैसे ही होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जैसे ऊपर से नीचे आओगे, मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगा, और लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगा। सो अगर मैं आपको पूछूं हमारे पीरियोडिक टेबल में सबसे छोटा कौन है, तो जो सबसे पहले आएगा, यानी कि पहले पीरियड में जो सबसे लास्ट में, तो सबसे छोटा हमारे पास होगा हीलियम। द स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन अवर पीरियोडिक टेबल इज हीलियम। द लार्जेस्ट एटम इन अवर पीरियोडिक टेबल, तो पहले ग्रुप का लास्ट वन फ्रांसियम इज द लार्जेस्ट एलिमेंट एटम इन अवर पीरियोडिक टेबल। सबसे ज्यादा नॉन मेटालिक कौन, तो सबसे छोटा और सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हीलियम सबसे ज्यादा नॉन मेटालिक, और सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी फ्लोरीन की। फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। सबसे ज्यादा मेटालिक कौन, अगेन फ्रांसियम। ओके, सो दैट वाज ऑल अबाउट योर चैप्टर नंबर 5. Your chapter number 5 is completed over here. Before its completion, one single thing, जो ग्रीन लिखे हैं वो सारे मेटल है, इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहते हैं। जो ब्लैक है, ये ब्लैक सारे के सारे नॉन मेटल है, जो कि इलेक्ट्रॉन लेना चाहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ये सारे इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम एंड पोलोनियम, ये मेटालॉइड्स है। सम ऑफ द प्रॉपर्टीज आर फ्रॉम मेटल एंड सम ऑफ द प्रॉपर्टीज आर फ्रॉम नॉन मेटल। ओके, इसके लिए हमारे पास सेपरेट चैप्टर है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। सो हम वहां पे इसके बारे में डिस्कस करेंगे ज्यादा। In the next lecture, we are going to complete the exercise and some of the textual questions from your textbook. So that's all for today's lecture. Read carefully and complete every single activity present in your textbook from activity 5.1 to the last activity, so that you can understand your periodic table more clearly and read every single line from textbook. In homework you have to write 2 times what we have done today from your textbook. Okay, that's all for today's lecture. Thank you.